Let us start. So before starting projectile motion, again I want to give the glimpse of things which are to be remembered in projectile motion. So title is points to remember. The first point is horizontal velocity at each and every point during entire projectile motion remains constant. तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पॉइंट ए पे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेट अस से 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप बोलोगे सर ए पे भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड रहेगा, एनीवेयर कहीं पर भी हम लेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम. और सेकंड पॉइंट जो याद रखना है वो ये है दैट वर्टिकल वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज ऑलवेज जीरो. ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका ए, इस पॉइंट पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमेशा वर्टिकल वेलोसिटी का आंसर जीरो होगा. Okay, so these are the 2 points which we need to remember during projectile motion, so don't forget this. So the other thing which you have to remember is for horizontal motion we need only 3 things. First is displacement, that is S, U, and third is T, or we have only one equation to be solved, that is S is equal to UT. That's it. Horizontal का काम यहीं पर खत्म हो जाता है. Then we will forward to the vertical motion. वर्टिकल में हमको 5 चीज़ें चाहिए, एस, यू, वी, ए और टी, वेयर ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुज वैल्यू वी ऑलरेडी नो एज -9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टी, एंड हियर वी कैन यूज एनी ऑफ द 3 इक्वेशंस. वन कैन बी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v is equal to u plus at or v square is equal to u square plus 2s, depending on whatever is asked in the question. जो हिसाब से पूछा होगा वो हिसाब से ये तीनों में से या तो कोई एक, या तो दो, या तो तीनों यूज होंगे. ठीक है, एंड रिगार्डिंग साइन कन्वेंशंस वी विल ऑलवेज टेक अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट पॉजिटिव, सॉरी राइट पॉजिटिव एंड लेफ्ट नेगेटिव. दिस इज द बेसिक स्लाइड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. और इसके पहले जो मैंने बताया 2 चीज़ जो याद रखने की है. पहली चीज़ ये है दैट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट रिमेन्स सेम एंड वर्टिकल वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज जीरो. बस ये 2 चीज़ आपको याद रखना है. चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट. अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द बिल्डिंग स्ट्राइक्स the ground 11.3 meters horizontally from the foot of the building. Determine the height of the building. The diagram is as shown. Now we have seen previously that we need to divide the entire motion into horizontal and vertical components. Hence we need to resolve this velocity of 12 meter per second which is inclined at 60 degrees into 2 components, horizontal and vertical. So resolving it, I will get the velocity in x direction as 12 sin 60 and velocity in y direction as 12 cos 60. Now we will analyze this problem by considering 2 motions, horizontal and vertical. Let us start with horizontal motion. For horizontal motion again we need 3 parameters, that is first one S, displacement in horizontal direction. So from the figure you can see from point A to point B the horizontal distance is 11.3 meters. So S will become 11.3. Ux, that is initial velocity in x direction. Initial velocity means the velocity at initial point in x direction. So again from the diagram we can see that it is 12 sin 60, on solving which I will get answer as 10.392 meter per second, and T will be total time of flight. Now we will apply the equation, that is S is equal to U multiplied by T. On substituting the values I will get the value of time of flight for the motion as 1.08 seconds. With this we completed the analysis of horizontal motion. Let us proceed to the vertical motion. For vertical motion we need 5 parameters, that is S, U, V, A and T. S means the displacement in vertical direction from the initial point to the final point. Again you can see from the diagram the vertical distance between point A and B in vertical direction is given to us as h.
and now because it is coming from A to B, that is from top to bottom, I will take it as minus h. U, that is initial velocity in y direction, so from the diagram it is 12 cos 60, again it is going downward, so it will be minus 12 cos 60, on solving which I will get minus 6 meters per second. Similarly, final velocity will be minus v sin alpha, but as this is not required in the question, I will skip this. A is acceleration due to gravity, which is constant as minus 9.81 meter per second square, and t is total time of flight, which we have already found out as 1.08 seconds. Now applying any one of the three equations, so I will apply first one, s is equal to ut plus half at square. On substituting the values, I will get the answer for h, that is height of the building, as 12.20 meters. This completes the solution. Question. So question कुछ इस तरीके का है और ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने, और किसी ने भेजा भी था मुझे ये क्वेश्चन. ओके, स्टार्ट करते हैं. From the top of the building 20 meter high, a ball is projected upward at an angle of 15 meter per second at an angle of 30 degrees. This is not 300, it is 30 degrees upward. At what distance it would hit the ground from the foot of the building. मतलब हमको ये पूछा है कि x क्या होगा, this is x, ये पूछा है कितना दूर जाके गिरेगा. What is maximum height above the ground, ग्राउंड से ऊपर कितना, मतलब हमको ये पूछा है ग्राउंड से ऊपर कितना हाइट रहेगा. सो इट विल बी 20 प्लस y एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम. और थर्ड चीज पूछा है, what is the velocity of ball just at it hit the ground and total time of flight. ये चार चीज पूछा हुआ है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट. नाउ हम लोग जो क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, ये वाला क्लास में शायद हुआ है, वी नॉर्मली टेक मोशन फ्रॉम ए टू सी, स्टार्ट टू एंड. इसके अंदर भी लेंगे, बट पहले हम लोग लेंगे मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से सिर्फ बी की तरफ. कोई बताएगा क्यों, वाई I am taking only motion from A to B. मैं सिर्फ मैक्सिमम हाइट रीच किया उधर. हाँ, मैं सिर्फ अभी तक इतना ही मोशन कंसीडर कर रहा हूँ, only from A to B, that's it. क्वेश्चन में ये बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट. क्वेश्चन में हमको पूछा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट मेरे को बी पे मिल रही है, इसलिए मैं मोशन फ्रॉम ए टू बी कंसीडर कर रहा हूँ. ओके, इन मैकेनिक्स प्रॉब्लम कब तक स्टार्ट नहीं करोगे, सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व द इंक्लाइंड फोर्स. सीधा करेंगे इंक्लाइंड, यस, यहाँ पर मेरे को इंक्लाइंड दिख रहा है, सो आई विल रिजॉल्व दिस. सो दिस विल बी 15 cos 30 and this will be 15 sin 30. एक बार सब रिजॉल्व हो गया, then we can start with the problem. Okay, so motion from A to B I will divide into two parts, horizontal, vertical. ठीक है, horizontal में सिर्फ मेरे को तीन चीजें चाहिए, एक चाहिए S, एक चाहिए U और एक चाहिए T. S, U and T. And similarly in vertical I will need S. Just remember we are considering motion from A to B only. मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में A to B के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है. ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम A to C इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, A और C के बीच में कितना है, X है, वो तो आपको डायग्राम में दिया है. ठीक है, तो A और B के बीच में दिया नहीं है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से इट इज x1, छोटा डिस्टेंस, सो लेट अस अज्यूम दैट इट इज x1. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बताओ. 15 cos 30. इट इज 15 cos 30. देन टाइम t नॉर्मली हम लोग t लेते थे A to C के लिए, बट यहाँ पर हमने मोशन आधा ही कंसीडर किया है A to B, उसलिए मैं यहाँ पर टाइम भी लिखूंगा t1, पूरा टाइम नहीं है, इट इज ओनली टाइम फ्रॉम A to B. ठीक है, उसके बाद एक ही इक्वेशन हमारे पास है, S इज इक्वल टू यू टी, S की जगह पे आ जाएगा x1 इज इक्वल टू U की जगह पे 15 cos 30 मल्टीप्लाइड बाई t1. सो आई विल गेट t1 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई 15 cos 30. वर्टिकल, अब सिर्फ याद रखो वर्टिकल के बारे में, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B, A से B के बीच में, A से B के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, y. इट इज ओनली y. एग्जाम में लोग क्या करते हैं, मिस्टेक को बताता हूँ,
एग्जाम में लोग लिखेंगे 20 प्लस वाई, वो गलत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, मोशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस, इट इज ओनली वाई, यहाँ पर आ जाएगा वाई। यू कितना हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी एट इनिशियल पॉइंट 15 sin 30. इट इज 15 sin 30, ठीक है। व्हाट विल बी वी, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट बी, सोच के बताओ, फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट 0. yes, b is the topmost point, topmost point, at topmost point vertical velocity is 0. then a we will take as minus 9.81 meter per second square और टाइम t का मैं ले रहा हूँ t1. नाउ वी कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला, तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बट यहाँ पर भी लॉजिकली थोड़ा सा सोचो, अपने को टाइम मालूम है क्या, टाइम मालूम नहीं है, ठीक है, टाइम मालूम नहीं है तो टाइम वाले फॉर्मूलेस को अवॉइड करो। तो टाइम का फॉर्मूला अवॉइड करने के बाद मेरे पास एक ही इक्वेशन बचता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जिसके अंदर टाइम नहीं आता है। बाकी दो भी आप लोगे आंसर आएगा, लेकिन घुमा फिरा के आएगा, ये वाले इक्वेशन से डायरेक्ट आ जाएगा। सो आई विल राइट वी स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 sin 30 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.81 इंटू वाई, ठीक है। तो कैल्सी में डालो एंड गिव मी द आंसर फॉर वाई, ठीक है। एग्जाम में सॉरी मिस्टेक देखो कहाँ होती है, इस जगह पे 15 sin 30 का स्क्वायर है, लोग क्या करते हैं 15 sin 30 स्क्वायर, मतलब सिर्फ sin 30 का स्क्वायर लेते, इट इज 15 sin 30 द होल स्क्वायर एंड गेट मी द आंसर फॉर वाई। 2.866 आ रहा है, ठीक है 2.866 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज 2.866 मीटर्स। अच्छा, अब एग्जाम में देखो लोग यहाँ पर 2.866 लिख के छोड़ देते, क्वेश्चन पढ़ो बराबर क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, आई विल हाईलाइट दैट पार्ट, क्या पूछा है देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड अबव द ग्राउंड। तो आंसर 2.86 करेक्ट है क्या, कि कुछ करना पड़ेगा, प्लस 20 प्लस के अंदर प्लस 20 करना पड़ेगा, करेक्ट। एग्जाम में लोग यहाँ पर लिख के छोड़ देते हैं और उनका मार्क्स कट जाता है। सिंपल सा एक चीज पूछा है, अटेंड फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम हाइट, फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 20 प्लस 2.866 विच इज इक्वल टू 22.866 मीटर्स। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पर हमको क्या पूछा है देखते, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी विथ बॉल विथ हिट जस्ट हिट्स द ग्राउंड, और तीसरा पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस, मतलब सब कुछ एंड के बारे में पूछा है, खत्म होने के बाद। तो नाउ आई विल कंसिडर मोशन फ्रॉम ए टू सी, स्टार्ट टू एंड। पहले हमने कंसिडर किए थे ओनली फ्रॉम ए टू बी, अब हम कंसिडर करेंगे ए टू सी, स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा। सो यहाँ पर मैं फिर से बना देता हूँ, इट इज़ 15 cos 30 and this is 15 sin 30। चल आगे बढ़ते, अगेन सेम लॉजिक, आई विल डिवाइड द सॉल्यूशन इनटू टू पार्ट्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अब तुम्हारे से आंसर चाहिए सोच समझ के। हॉरिजॉन्टल में ओनली 3 पैरामीटर्स S, U एंड T, वर्टिकल में 5 पैरामीटर्स S, U, V, A, T। चलो स्टार्ट करते। डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम A टू C, A से C के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, इट इज x, करेक्ट। U, इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 15 cos 30, और अभी हम लोग टाइम को t का t लेंगे बिकॉज हम लोग ने पूरा मोशन कंसिडर कर लिया A टू C। देन वी हैव ओनली वन इक्वेशन, S इज इक्वल टू ut, सो आई विल राइट x इज इक्वल टू 15 cos 30 मल्टीप्लाइड बाई t, और आई कैन राइट t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 15 cos 30। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्टिकल साइड। चलो अब यहाँ पर फिर से वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट A और C के बीच में, A और C के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है,
22.86. 22.86 Zero कौन बोला का। था? जीरो। देखो मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, आई वॉन्ट डिस्प्लेसमेंट ओनली फ्रॉम ए टू सी। ए और सी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस बताओ। आंसर विल बी ओनली 20। एग्जाम में लोग यही घाई करते, 22 पॉइंट लिख देते। 22 पॉइंट लिखा, आंसर आपका पूरा रॉन्ग हो गया। अगेन यहाँ पर देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, आई नीड डिस्टेंस ओनली फ्रॉम ए टू सी। ए से सी के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है? तो क्वेश्चन में दे दिया है इट इज 20। 20 भी गलत है, 20 भी टेक्निकली गलत है, कुछ तो मिस्टेक है उसमें। -20. यस, इट विल बी -20। मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, सो इट विल बी -20। ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज 15 sin 30। सी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी, सी पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? VC वहां पर दिख रहा है मेरे को डायग्राम में। वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज VCY, और वो भी डाउनवर्ड जा रहा है, इसलिए इट विल बी माइनस ऑफ VCY। इट इज गोइंग डाउनवर्ड, इसलिए माइनस VCY। देन A इज -9.81 और T इज इक्वल टू T। तब अगेन हमारे पास S का फॉर्मूला है, S अवेलेबल है, तो आई कैन यूज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है। S की जगह पे -20, U की जगह पे 15 sin 30 मल्टीप्लाइड बाई T प्लस हाफ, A की जगह पे -9.81 इंटू T स्क्वायर। अब ये पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है? T अननोन है। तो पुट इन योर कैलसिस एंड गेट द आंसर फॉर T। सर आंसर माइनस में आ रहा है। आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो क्या गड़बड़ किया मैं बताता हूँ। चलो, यहाँ पर T का हाईएस्ट पावर क्या है? ये इक्वेशन में T का हाईएस्ट पावर क्या है? इट इज 2। मतलब ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैनॉट, हाँ ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका कभी शिफ्ट सॉल्व वाले मेथड से कभी आंसर सही देगा, कभी आंसर गलत देगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। तो आप लोग अपने जाओ कैलसी में, सॉल्व इक्वेशन, और उसमें शायद थर्ड वाला ऑप्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके अंदर आप लोग ये 1/2 इंटू -9.81 ये डालो आप ए में। ठीक है। इसको आप ए में डालो, टी के साथ जो भी रहता है उसको डालने का बी में, और ये -20 का आप राइट साइड लाओगे तो आंसर आएगा +20, इसको डालो सी में। देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर 2.92। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का 2.92। और एक बार टी मिल गया, पुट दिस वैल्यू ऑफ टी हियर। टी की वैल्यू यहाँ डाल के कौन सा आंसर मिल जाएगा? एक्स का आंसर मिल जाएगा। गिव मी द आंसर फॉर एक्स। 37.93। तो देखो अब दो आंसर हमने और निकाल लिए। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये भी हो गया। अब लास्ट में हमको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक है। तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, यहाँ पे अपने एक ही यूज किया अभी, ये वाला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम लोग अभी दूसरा यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन इज V इज इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है। V की जगह पे आ जाएगा -VCY इज इक्वल टू, U की जगह पे आ जाएगा 15 sin 30, A की जगह पे -9.81 इंटू T की जगह पे भी आंसर हमको मालूम है 2.92। सो द ओनली अननोन इन दिस इज VCY। तो मेरे को आंसर मिल जाएगा VCY का, मीटर पर सेकंड। 21.14। सही हाँ है। सर सही है। सही। हाँ, अभी हमने जो आंसर निकाले वो VCY का निकाले। VCY का आंसर कितना है? 21.14 मीटर पर सेकंड। ये किसका आंसर है? VCY का आंसर है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे VCX। अब VCX के लिए पॉइंट नंबर 1 को याद करो। पॉइंट नंबर 1 क्या था? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स सेम। तो अगर हमको डायग्राम में दिया है, ये वाले डायग्राम में देखो हमको दिया है दैट एट पॉइंट ए द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 15 cos 30। तो पॉइंट सी पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी? 15 cos 30। 15 cos 30 एंड हुज वैल्यू इज हाउ मच? 15 cos 30 कितना आता है? 12.99। कितना?
12.99 है। 12.99। कोई है क्या हाँ इसको सपोर्ट करने को? 13. हाँ, 12.99 13 इट्स ओके ओके। तो वीसी एक्स हो गया, वीसी वाई हो गया। तो नाउ आई विल फाइंड आउट रिजल्टेंट वेलोसिटी वीसी। वीसी इज इक्वल टू रूट ऑफ वीसी एक्स स्क्वायर प्लस वीसी वाई स्क्वायर। 24.81 24.81 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब एग्जाम में क्या होता है, लोग यहाँ पर भी छोड़ देते सॉल्यूशन। क्यों छोड़ देते? बोलते सर बोले था कि वेलोसिटी फाइंड करो, हमने वेलोसिटी फाइंड कर लिया, आंसर आ गया। बट ये भूल जाते हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हमने ये जो निकाले वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले। शुक्र है। ये जो हमने निकाले वो क्या निकाले? सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले। अब हमको डायरेक्शन भी निकालना है। सो डायरेक्शन अल्फा इज गिवन बाई, अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ वी सी वाई अपॉन वी सी एक्स। ये एग्जाम में लोग भूल जाते हैं। चलो वी सी वाई अपॉन वी सी एक्स का करके आंसर बताओ कितना आ रहा है? 58.43. 58.43. Okay, let us start with the next question, which says a stunt motorist has to clear a ditch. Find the minimum speed it should have at A to clear the ditch. Also find the speed at B and angle alpha of the ramp to be provided. So basically it is like this. There is a ditch here and this motorcyclist or stunt motorcyclist has to jump from this ditch and land over here on this ramp. So what should be the initial velocity of the jump and what will be the velocity of the landing? This we are required to be found out. So let us say before starting anything, this velocity is inclined, so we need to resolve it into two components. So let us say this is v along x and along y. So this will be v0 sine 30, this will be v0 cos 30, as this angle is given as 30 degrees. Similarly, when it will land here, the landing velocity will be like this along this ramp. So this is, let us say, VB. So if I resolve this, this will be VBX, velocity along x direction, and this will be VB1. So with this, what I have done is I have converted all the inclined velocities into x and y components. Now, as it is a problem of projectile motion, we have seen that every problem of projectile motion can be solved by dividing it into two parts. One will be horizontal and other will be vertical. Two parts. In horizontal, we need three parameters S, U and T. In vertical, we need five parameters S, U, V, A and T. Now let us fill in the blanks. S, that is displacement in horizontal direction. So if you see from A to B, the horizontal distance is this, which is given to us as 8 meters. So here it will be 8. Then U is initial velocity in horizontal direction. So initial velocity in horizontal direction is this one. So I will write here V0 cos 30. Then time t is equal to t. Now regarding vertical displacement from A to B, that means I need this distance, the vertical distance from A to B. So if you look, observe here carefully, we are given that this distance from A to this is 8 and this is 3.5 on the right hand side. So the remaining distance here will be 4.5, that is 8 minus 3.5. But because I am going from A to B, that is from top to down, the answer will be minus 4.5. Then U is vertical velocity initial point, which is V0 sine 30. Then final velocity in vertical direction. So here you can see that in vertical direction, the final velocity is VBY. And because it is going downward, I will write minus VBY. Then A we know it is minus 9.81 meter per second square, and T, let it be T only. After that, for horizontal, we have only one equation, S is equal to UT. So I will write 8 is equal to V0
cos 30 into t, or I will get therefore t is equal to 8 divided by V0 cos 30. Let this be equation number 1. Now on the right hand side, we can use the equation S is equal to ut plus half a t square. So S will be minus 4.5 is equal to u की in place of u I will write V0 sin 30 into t. T from here I can write 8 divided by V0 cos 30, then plus half, in place of a it will be minus 9.81, and in place of t square it will be 8 square divided by V0 square cos square 30. Now from this, if you solve this equation, this V0 and V0 get cancelled. Sin 30 upon cos 30 will become tan 30. So I will get one equation, minus 4.5 is equal to 8 tan 30. This plus into minus becomes minus. So minus 4.905, that is 9.81 divided by 2 into 8 square, that is 64, V0 square cos square 30. So on solving this equation, the only unknown is V0. So on solving this equation, I will get answer for V0 as 6.77 meters per second. So this is the answer for initial velocity of the motorist, that is 6.77 meter per second. Now, as we use this equation, S is equal to ut plus half at square, similarly we have another equation with us, that is v square is equal to u square plus 2as. So in place of v, if we go back, in place of v I will use minus vby. So here it will be minus vby square is equal to, in place of u it is v0 sin 30. So it is v0 sin 30 square plus 2, in place of a it will be minus 9.81, and in place of s it will be minus 4.5. Now we have the value of v0 with us from the previous equation. So I will write minus vby square is equal to 6.77 sin 30 square plus 2 into minus 9.81 into minus 4.5. The only unknown in this equation is VB now. So I will get answer for VB as, that is VBY as 9.987 meter per second. But this is VBY. Now for VBX, if I make this here also, this is VBX, this is VB, this is VBY. Similarly, this is V0 cos 30, this is V0 sin 30. We have done this previously also. Now we have the concept of projectile motion, and it says that the horizontal velocity along the projectile remains same. From that concept I can write the horizontal velocity at point A will be equal to horizontal velocity at point B. So from that concept I will write V0 cos 30 is equal to VBX. V0 we have the value as 6.77. So 6.77 cos 30 is equal to VBX. So I will get therefore VBX is equal to 5.862 meter per second. So now we got the answer for VBY, we got the answer for VBX. So now I can write therefore VB is equal to, that is resultant velocity at B is equal to square root of VBX square
plus VBY square, which will be equal to square root of 9.987 square plus 5.862 square. On solving which, I will get answer for VB as 11.58 meter per second. This is answer for VB. But this is just the magnitude. You also need to find out alpha, angle of ramp. So we have the formula alpha is equal to tan inverse of Vy upon Vx, which will be equal to tan inverse of Vy. Vy it was 9.987 divided by Vx is, we got previously, Vx is 5.862. So finally I will get, therefore alpha is equal to 59.58 degrees. So this is the final answer. Thank you.